السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تجھ سے مانگوں میں تجھ کو، جو کہ تحریر ہے شازیہ مصطفیٰ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ خوشنما جاب تلاش کر رہی تھی، ڈھیر سارے انگلش اور اردو اخبارات سامنے پھیلائی بیٹھی تھی۔ ایک جاب اسے اپنے مطلب کی نظر آ گئی تھی۔ تم اپنے سسر سے تو پوچھ لیتی امی، ان کا نواسا اپنے ان سے پوچھ کر گھر سے بھاگا تھا، جو میں بھی ان سے پوچھ کر ہر کام کروں، میری مرضی جو کروں۔ خوشنما کا لب و لہجہ بہت تلخ اور کڑوا ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ ہیشم کے نانا ہیں، تمہیں اجازت لینی چاہیے۔ امی، آپ بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ ان کا نواسا ہی تعلق توڑ کر چلا گیا تو پھر یہ کیوں پوچھیں؟ نمنا کو بھی ان کی بات پسند نہیں آئی تھی تو اس نے مداخلت کی۔ اس کے توڑنے سے ایسے ہی تعلق تو نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں غصہ آ گیا تھا، مگر میں اس انسان سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ خوشنما تیار ہونے چلی گئی تھی، ابو تو اسے شرمندگی کی وجہ سے بول ہی نہیں رہے تھے۔ 11 بجے وہ اس بلڈنگ میں پہنچ گئی تھی جس کا اشتہار تھا۔ وہ سنبھل سنبھل کر دھڑکتے دل کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہاں پہلے ہی اتنے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ اسے یہاں جاب ملنا مشکل تھا۔ اپنے ڈاکومنٹس اندر پہنچا دیے تھے، پتہ نہیں کب باری آئے گی۔ انتظار کرتے 1 بجے اس کی باری آ گئی تھی۔ لائٹ گرین سے پرنٹڈ کپڑوں میں ملبوس وہ اپنے اندر اعتماد بحال کر کے اندر چلی آئی تھی۔ سامنے بیٹھے سائڈ والی چیئر پر جس شخص پر نگاہ پڑتے وہ سکتے میں آ گئی۔ یار میں چلتا ہوں۔ وہ بیزاری سے اٹھا تھا۔ خوشنما نے تو اسے دیکھا ہوا تھا، البتہ اس نے خوشنما کو نہیں دیکھا تھا۔ یار انٹرویوز پورے کروا کر جاؤ، مجھ سے سوالات نہیں پوچھے جاتے۔ کیا پوچھوں؟ اشر نے اسے زبردستی ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ خوشنما کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، خشک لبوں پر زبان پھیر کر وہ چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اس شخص نے بھرپور نگاہ خوشنما پر ڈالی جو نگاہ جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خوبصورت سا سراپا کچھ افسردہ افسردہ لگ رہا تھا۔ اشر یار میں بہت تھک گیا ہوں، پھر واپس چلے جاؤ گھر، اس نے جھٹ کہا تھا۔ کبھی نہیں، اس کے لب و لہجے میں قطعیت تھی۔ اچھا یہ چند انٹرویوز اور پورے کر لو۔ وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ خوشنما کا اندر ہی اندر خون کھول رہا تھا، دل کر رہا تھا طبیعت صاف کر دے، مگر خود کو باز رکھا اور لمحوں میں اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی، ایسا بدلہ جو ساری زندگی سکون کے لیے ترسے گا۔ وہ دانت پیس رہی تھی۔ آپ کو یہ جاب کیوں چاہیے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور خود بھی کہیں چلے گئے ہیں، میری گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہے، مطلب پیسوں کی تنگی آن پڑی ہے، مجھے ضرورت ہے۔ خوشنما نے جان بوجھ کر ایسا جواب دیا کہ ہیشم کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ گھر سے نکال کر خود کہاں گئی؟ آپ ذاتیات پر اتر رہے ہیں۔ خوشنما نے برا مان کر اسے گھورا۔ اشر نے ہیشم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ کو 3 دن کے اندر انفارم کر دیں گے اگر آپ کی سلیکشن ہو گئی تو۔ اشر نے اس کی فائل مسکرا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ہیشم کو جانے کیوں آواز جانی پہچانی لگی تھی، مگر نہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ دبی ہدکی گلیوں میں رہنے والی بیک ورڈ سی لڑکیاں کہاں جاب کر سکتی ہیں؟ اس نے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کر دی۔ اسے تو میں نانی یاد کروا دوں گی۔ خوشنما یہ جاب کسی طرح بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پلیز مجھے یہ جاب دے دیں، میں بہت مجبور ہوں۔ اس نے آواز کو بھی مجبور اور بے بس بنا لیا تھا۔ اوکے اوکے محترمہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ ہیشم کو جیسے اس پر ترس آ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ کو میرا ذرا احساس نہیں، اس نے مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ وہ رونے لگی تھی۔ یہ باتیں آپ یہاں بیٹھ کر نہیں کریں۔ اشر ایسی گھریلو باتوں سے گھبراتا تھا۔ مجھے وہ مل جائے میں اسے بخشوں گی نہیں، بددعائیں ہیں میری اسے۔ اشر میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہیشم کو اس کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ فوراً ہی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ خوشنما کے ہونٹوں پر دبی دبی طنزیہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ لمبا چوڑا ہیشم دیکھنے میں بھی مغرور نظر آتا تھا۔ تم کھانا کھا کر سو جانا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اشر نے ہانک لگائی۔ خوشنما بھی فائل اٹھا کر نکل گئی تھی۔ حباب کو ڈر خوف سے بخار ہو گیا تھا۔ اس نے اس بات کا اثر لے لیا تھا۔ اروما کو اپنی ڈرپوک سی بہن پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ حباب کا یہی سوچ سوچ کر برا حال تھا، لوگ کیا کہیں گے، جیسی ماں ویسی بیٹی، اور وہ یہ بات تو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بینا الگ اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر وہ مان ہی نہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بالکل بھی نہیں کھول رہی تھی، سبھی پریشان تھے۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اسے ہسپتال لے کر چلیں۔ اروما کو فکر کھائی جا رہی تھی۔ اکرام بغور حباب کی کنڈیشن دیکھ رہے تھے، انہیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ حباب نے کچھ کھایا ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی لے آئے اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا تھا۔ وہ اور بینا نازیہ تینوں ہسپتال چلے گئے تھے۔ ایمرجنسی روم میں اسے رکھا ہوا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بچی نے کوئی ایسی گولی لی ہے جو اسے بے ہوش کر گئی ہے، سینئر ڈاکٹر نے بس اتنا ہی بتایا۔ بینا متوحش زدہ فکر مند سی اپنے لمبے لمبے ناخن دانتوں سے کتر رہی تھی۔
ان کی بیٹی نے یہ بات اتنی دل پر لے لی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی تھی، مگر وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میری بچی نے اتنی سی بات کو دل پر لے لیا۔ بینا لب کچل رہی تھی۔ "ہم، تمہاری نظر میں اتنی سی بات ہوگی؟ وہ حالات کو جانتی ہے۔ اکرام بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مطلب واضح ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کا پرچہ ہاتھ میں تھمایا جو انہوں نے تھام لیا تھا۔ آپ بھی اس وقت کیا باتیں لے کر بیٹھ رہے ہیں؟ نازیہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ رہی تھی۔ انہیں بینا پر حیرت تھی جو کسی بھی بات کو سیریس لیتی ہی نہیں تھی۔ بھابھی، اس میں میرا تو قصور نہیں، معصوم صورت بنانے لگی۔ چپ کرو، ہسپتال میں تماشا نہیں لگاؤ۔ وہ دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ اب آپ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ بیٹا اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اکرام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہی رشتے تو اس کی ہمت بندھائے ہوئے تھے، ورنہ بینا کے جیسے کرتوت تھے، پھر بھی بھائی بہن خیال رکھتے تھے۔ ماموں مجھے گھر جانا ہے، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جب آپ کی نظر بینا پر پڑی تو اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بینا جانچتی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھے جا رہی تھی جو کل سے ان سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا چلیں گے۔ اکرام جیسے اس کی ناگواریت محسوس کر گئے تھے، وہ تعصب سے انہیں دیکھنے لگے۔ ایک دن تو ڈاکٹر نے اسے یہاں رکنے کا کہا تھا کیونکہ ڈرپس کے ذریعے اس کے جسم سے زہر کے اثرات ختم کرنے ضروری تھے۔ ماموں مجھے یہاں پر بہت گھٹن ہو رہی ہے۔ تم چپ کر کے لیٹی رہو، زیادہ بولو گی تو گھبراہٹ ہی ہوگی۔ بینا کو اس کا اگنور کیے جانا بہت برا لگ رہا تھا۔ بینا تم بھی حد کرتی ہو، بچی ویسے ہی ٹھیک نہیں اور تم اسے ڈانٹ رہی ہو۔ اکرام کو بہت برا لگا تھا۔ بھائی جان اسے آپ اتنا سر پر نہ چڑھائیں، اور یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ چپ کرو، اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے ڈانٹ دیا تھا۔ بینا لب بھینچ کر رہ گئی۔ اب آپ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اسے ایسی ذلت کی زندگی نہیں چاہیے تھی، لوگوں سے بری نظروں سے دیکھیں۔ موت کو گلے لگانے چلی تھی، مگر موت نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ اکرام رات اس کے پاس رہے تھے، پھر وہ صبح ڈیوٹی کی وجہ سے گھر چلے گئے تھے۔ اس کے پاس نازیہ کو چھوڑا تھا جو جانتے تھے بینا اب آپ سے ڈانٹ ٹپٹ ہی کریں گی۔ مامی ماموں چلے گئے؟ مگر کیوں؟ حباب کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہ رہے تھے۔ پھر صبح آ جائیں گے، وہ ڈیوٹی پر بھی تو جانا ہے انہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ حباب تم کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچو، سب ٹھیک ہے، تم نارمل طریقے سے رہنا۔ نازیہ اسے سمجھا رہی تھی۔ سب اپنی اپنی زبان میں اسے سمجھا رہے تھے، مگر کسی بھی طرح اس کی تسلی نہ ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں اس سے کہاں غلطی ہوئی تھی۔ زندگی اسے اپنی زندگی بری لگنے لگی تھی۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ اسے جیسے کوئی آگہی دے رہا تھا۔ اس کی عمر اتنی تو تھی نہیں، اس میں سنجیدگی حد سے زیادہ تھی۔ ہر بات کو بہت محسوس کرتی تھی، جبکہ اروما سے اختلاف کر اپنا غصہ نکال لیتی تھی۔ وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی، اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ اسے خبر ہو گئی تھی حباب ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے دل کی بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے رضوانہ سے کچھ نہیں چھپایا تھا، ساری بات انہیں بتا دی تھی، مگر رضوانہ کو یہ بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پورے محلے میں یہ بات اڑ گئی تھی، اور یہ کسی بھی لڑکی کے لیے ڈوب مرنے کے لیے کافی تھا۔ حباب نے اس بات کا اتنا اثر لیا کہ وہ اپنی جان دینے کے در پر ہو گئی۔ میں بچی کو دیکھ آتی ہوں۔ امی آپ دیکھنے جائیں گی تو کہیں بات کچھ اور نہ ہو جائے۔ زمران کو یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں حباب کے گھر والے ان پر چڑھائی نہ کر دیں۔ کچھ نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گی سب کچھ۔ انہوں نے اپنے پریشان بیٹے کو اطمینان دلایا تھا۔ رضوانہ اسے اسپتال دیکھنے جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ وہ بہت کھلے اور صاف دل کی خاتون تھی۔ مزمل کو ساتھ لے گئی تھی۔ پتہ چلا حباب ڈسچارج ہو کر اپنی نانی کے گھر چلی گئی ہے۔ پھر وہ آ گئی تھی۔ نانی کے گھر جانے کی ان میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو حالات سے بھاگ رہی ہیں۔ مزمل تیز لہجے میں گویا ہوا۔ میں کوئی حالات سے نہیں بھاگ رہی، کبھی ان کے گھر گئی نہیں ہوں نا، جاتے ہوئے جھجک آ رہی ہے۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق تھیں۔ جھجک کی کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیے۔ مزمل انہیں زبردستی لے آیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ بیل بجائی تو اکرام نے ہی دروازہ کھولا۔ مزمل نے جھٹ سلام کیا تھا۔ رضوانہ کو اکرام نے سلام کیا۔ کیا بات ہے، زمران نظر نہیں آ رہا آج کل؟ وہ انہیں لے کر اندر آ گئے تھے۔ زمران کی بھی وہی حالت ہے جو حباب بیٹی کی ہے۔ رضوانہ کو وہ سامنے ہی نظر آ گئی جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ حسین بیگم، نازیہ اور اروما انہیں یہاں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی تھیں۔ آپ لوگ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں حباب کو دیکھنے آئی ہوں۔ کیسی ہو بیٹا؟ حباب انہیں دیکھ کر اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ رضوانہ نے اسے اشارے سے اٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ کہتے ہیں ہر دیکھنے والی آنکھ کا قصور ہے اور سوچنے والے دماغ کا۔ کون کیا دیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟
वो इतनी गहराई से दो मायनी बात कर रही थी, तीनों ही चौंक गए। हमें क्या पता था लोग इस तरह बातें करेंगे। हसीन बेगम हसीन बेगम के लहजे में दुख और तासुब था। खैर, लोगों का काम तो बातें बनाना ही है। जो लोग आप लोगों से मुझे ये कहना था कि मुझे हबाब बेटी का रिश्ता अपने बेटे जमरान के लिए चाहिए। जी? हसीन बेगम और नाजिया हैरान रह गई थीं। ये तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। ये आप क्या कह रही हैं? मीना कदरे तौक़ुफ़ के बाद मदम लहजे में गोया हुई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और दिल से कह रही हूँ। रिज़वाना ने हबाब को साथ लगा लिया था। वो झेप गई। दिल अजीब सा होने लगा था, बल्कि उसे झंझलाहट और बेजारी होने लगी। अभी वो शौक से निकली नहीं थी, उस पर मुस्तदाद ये बात। मैं 2 दिन बाद आऊँगी और हाँ, मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। वो इन लोगों से ऐसे मुखातिब थीं जैसे पुरानी शनासा हो। इकराम तो सुनकर खुश हो गई। उनके जाने के बाद उन्होंने हाँ का फैसला कर दिया था। क्या बोरियत फैला रखी है तुम लोग? कहीं आते जाते नहीं हो? सादिया घर में रह रहकर बोर हो गई थी। अगर तुम्हें कहीं आना जाना हो तो अम्मी के साथ सुबह निकल जाया करो। कराची का चप्पा चप्पा घुमा देंगी। हुस्ना ने उसकी बेजार सूरत देखी थी। मैं बाज़ आई मामी के साथ जाने से 2 दफ़ा ही गई हूँ, टांगें दर्द करने लगी हैं। ऊपर से मामी बसों में लटका कर ले गई थी। सादिया को रिश्तेदारों के जाने का शौक चढ़ा था। नसरीन उसे ले गई थी। उस दिन के बाद से सादिया ने तौबा कर ली थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमा फिरा कर लाता हूँ। फराज को भोली सी सादिया शुरू से ही पसंद थी। तुम्हारे साथ? वो हैरान हुई थी। क्यों, मेरे साथ जाने में क्या कबाहत है? फराज ने जतून तीखे किए। मुझे स्कूटर पर बैठने की आदत नहीं है। गाड़ी लेकर चलते हो तो चलूंगी। वो झट बोली थी। तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदने से रहा। वो चिढ़ गया था। हुस्ना को ले लो। झट जवाब आया था। मैं अपनी गाड़ी किसी को नहीं देती। हुस्ना ने साफ इनकार किया। आयजा आजकल जाने की से मोबाइल पर लगी हुई थी और वकास वो खुद ही सैर सपाटों के लिए सुबह निकल जाता था। एक दिन के लिए भी नहीं दे सकती? एक दिन के लिए भी नहीं दे सकती हो? नहीं, सॉरी। हुस्ना ने साफ इनकार करके कंधे उचकाए थे। बहुत ही कंजूस हो। ये तुम्हें आज पता चला है? हम तो इसे पहले से ही जानते हैं। फराज ने भी तायदी कलिमात अदा किए थे। मैं आपको फजूल काम के लिए अपनी गाड़ी नहीं दे सकती और वैसे भी आप बहुत तेज़ भगाते हैं। वो फराज को भी अच्छी तरह जानती थी। पता नहीं क्यों मैं कराची आ गई। सादिया को अफसोस होने लगा। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हुस्ना फराज को इसलिए भी जानती थी कि वो सैर सपाटों का वैसे ही शौकीन था। सादिया की आड़ में खुद गाड़ी उड़ाए फिरेगा। मैं तो अब बिल्कुल नहीं रुकने की। वो बदमज़ा सी होकर अंदर चली गई थी। फराज भी उसके पीछे ही दौड़ा। हुस्ना वैसे भी चाहती थी ये लोग यहाँ से चले जाएं तो अच्छा ही है। अम्मी ने उसे खाने पकवा पकवा कर थका डाला था। अरे, तुम हुस्ना की बात का बुरा मनाने लगी। फराज ने सुर्ख और सफ़ेद सादिया के हाथों को पकड़ा और रोने में जो मशगूल थी, झट अपने हाथ छुड़ाए। आयजा से जाने क्या पश्तो में बोलने लगी। कोयटा में वो लोग पश्तो भी बोलते थे। ए, तुम लोग उर्दू में बात करो। फराज को कोफ्त होने लगी। हमारा उर्दू बोल बोलकर मुंह दुखने लगा। सादिया ने मुंह बनाया। यार, हमारा तो पश्तो बोल के हलक दुखने लगता है। वो बेजारियत से बोला। चलो, तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। उसे खुद भी डर था सादिया सच में ही वापस कोयटा न लौट जाए। सच? तुम ले चलोगे? वो खुश हो गई थी। आयशा मुंह बनाकर दोबारा मोबाइल में मसरूफ हो गई। वो तेज उसे अपॉइंटमेंट पर लिया गया था। वो तो हैरान थी। जैसी कहानी वो वहाँ सुना कर आई थी लगता था कि उसे जॉब मिलेगी। उसने ये बात सबसे छुपा रखी थी। हिशम इस फिल्म के बॉस का दोस्त था। बहुत खुश नजर आ रही हैं। निम्रा ने उसे ब्लैक प्रिंटेड कॉटन के कपड़ों में सादा सा तैयार देखा था। वो अपनी सादगी में भी मुनफरिद ही नजर आती थी। जाहिर है जॉब जो मिल गई है इसीलिए खुश ही नजर आऊंगी। बैग तैयार करके बाहर चेयर पर डाला। अम्मी नाश्ता बनाने लग गई थी। सब नाश्ता ही साथ करते थे। अबू तो बीमार थे और वो अपने रूम में करते थे। खुशनुमा, मुझे तुम्हारी जॉब से खुशी नहीं हुई है। अम्मी का चेहरा उदास और मगमूम नजर आ रहा था। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब्बू के इलाज के लिए हमारे पास कोई सरमाया नहीं और इनका इलाज बहुत ज़रूरी है। खुशनुमा पहले भी अपनी जिम्मेदारी इसी तरह समझती थी और आज भी वो वैसा ही समझ रही थी। पहले की बात और थी। तुम्हारी शादी हो गई है अब। अगर तुम्हारे ससुराल में पता चलेगा तो मुर्तज़ा साहब बहुत नाराज़ होंगे। प्लीज़ अम्मी, आप बच्चों को उनका डरावा ना दिया करें। उनके नवासे ने उनके साथ क्या किया है। ये उनकी पाबंद नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। रिमना को हर वक्त ससुराल की गिरदान पर बहुत गुस्सा आता था। तुम चुप करो, उन्होंने रिमना को डांट दिया था। इस वक्त तो मुझे जाने दें क्यों इस वक्त तो मुझे जाने दें क्योंकि पहला दिन है, वक्त पर पहुंचना ज़रूरी है। जल्दी जल्दी उसने नाश्ता किया था। बच्चों, ख्याल रखिएगा अपना, एम्मा ने बड़े बुजुर्गाना लहजे में कहा। वो साहिलाती खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई थी।
पहला दिन था, घबराहट भी हो रही थी। जॉब वो पहले भी करती थी, मगर शादी की वजह से मुर्तज़ा अली ने उसकी जॉब छुड़वा दी थी। मगर उसे क्या खबर थी, किस्मत उसे दोबारा वहाँ ले आएगी। वो पह वो वक़्त से पहले ही आ गई थी। अभी तो सफाई वाला अमला आया था और पूरे ऑफ़िस में सफाई हो रही थी। पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। खुशनुमा का तो उसका इंतज़ार था, किसी तरह भी उस तक रसाई हासिल करना चाहती थी। 9 बजे तक सारे लोग आ गए थे। जनाब, बॉस साहब का कोई अता-पता नहीं था। वो हाथ पर हाथ रख के बैठी थी। सर पर दुपट्टा उड़ा हुआ था। कई लोगों की उस पर निगाहें थीं। कितनी कमीनी दुनिया है। आंखें फाड़कर देखे जा रहे हैं। खुशनुमा को बहुत गुस्सा आ गया था। चाचा जी, आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी या मैं अजूबा लग रही हूँ? उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। सामने बैठे शख्स को तिलमिलाकर खूंखार लहजे में चाचा जी कहकर बेइज्जत ही कर दिया। जी जी, वो तो गड़बड़ा गया। क्या जी जी, अपने काम से काम रखें, इधर उधर देखने से बेहतर है। वो ज़्यादा ही मुंहफट और जंगजू हो गई थी। हालांकि ये तो उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं था। अकेली लड़की को जहाँ देखा, आखिर टिका कर बैठ जाते हैं। सारे बूढ़े खबीस एक नंबर के आवारा। वो आवाज़ें बुलंद बड़बड़ा रही थी। सामने ही अपने मुंह नीचे करके कामों में लग गए थे और उसकी जानिब देखने से गुरेज कर रहे थे। खुशनुमा, ये तुम तो नहीं थी। तुम बदमिजाज और बदतमीज कब से हो गई? तुम लोगों के ऐसे रवैयों पर टोका करती थी। आज तुम्हें क्या हुआ? अंदर से उसका ज़मीर उसे हिला रहा था। वो परेशान हो गई थी, मगर उसे ये सब करना ज़रूरी था, वरना ये बाहर की दुनिया के लोग चीर फाड़ कर खा जाएंगे। पहले इतनी खामोश सी थी, एक स्कूल में जॉब लगी हुई थी, वो भी अब शादी हो रही थी तो अब उन्हें छुड़वा दी थी। मिस खुशनुमा, आपको अंदर सर बुला रही हैं। इसका बुलावा आ गया था और वो सोचों से भी बाहर आ गई थी। अशर ने उसे बगौर देखा, जो आज खामोश ही लग रही थी। आपको आपकी नई जॉब मुबारक हो। इनायत साहब आपको सारा काम समझा देंगे। आपको कंप्यूटर तो चलाना आता ही होगा। अशर को इस खूबसूरत और नर्म नाजुक सी लड़की को देखकर हैरानगी थी। उसका शौहर आखिर छोड़कर क्यों चला गया? जी, सर हिलाया। ओके, आपको 3 बजे मैं बुलाऊंगा। कुछ ईमेल्स आपको यहाँ चेक करनी होंगी। अशर ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया था। ये क्या? खुशनुमा की इस्तेफामिया निगाह उठी थी। ये आपकी एडवांस सैलरी है। नहीं सर, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है एडवांस लूँ। जब सैलरी दी जाएगी तो ही लूँगी। उसने लिफाफा टेबल पर रख दिया। जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कह सकती हैं। अशर को उसकी ये अदा पसंद आई थी। जी, मुझे प्रॉब्लम यहाँ के लोगों से है। उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी जो आंखें निकाल कर बैठ गए हैं। वो गुस्से में थी। ओह सॉरी, मैं इन सबको वार्न कर देता हूँ। वो शर्मिंदा हो गया था। खुशनुमा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी। उसे हैशम का इंतज़ार था। किसी भी तरह उस तक पहुँचना था। उसे ये सोचना था, किसी तरह से। अनायत साहब ने उसे सारा काम समझा दिया था। लंच टाइम हुआ तो हैशम को ऑफिस में देखकर चौंक गई। स्किन कलर की पैंट पर, लाइट शर्ट में, ऊंचा लंबा तवाना चेहरे पर पिजारी लिए अंदर घुस रहा था। बंदे की शक्ल अच्छी है मगर मिजाज करेले जैसा है। खुशनुमा को इंतजार था, कब अशर उसे ईमेल्स देखने अंदर बुलाता है। क्या बात है? सर के दोस्त की शख्सियत में खो गई हैं? वहीं की एम्प्लॉय मुना ने उसे मुस्कुराते देखा। वो झेप गई थी। जी नहीं, मैं लंगूरों की शख्सियत में नहीं खोती। क्या कह रही हो? इतने हैंडसम तो हैं। मैं तो उनके चक्करों में हूँ, किसी तरह इनका नंबर मिल जाए। मुन्ना ने आ भर कर कहा। सोच लें, क्या पता ये शादीशुदा ना हो। "हश, ऐसा कुछ नहीं है। मुन्ना ने शर्टनफी में सर हिलाया था। खुशनुमा को उसकी बातों से कोफ्त होने लगी। जो बात में जो बात भी हैशम के मुतालिक ही कर रही थी। प्लीज़ कुछ काम भी कर लें, तन से किया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुन्ना खफीफ सी हो गई। खुशनुमा मुंह ही मुंह में बिदबिदाई थी, क्योंकि मुन्ना का हैशम के लिए बात करना नागवार गुजरा था। ज़मरान पर तो शादी मर्द तारी हो गया था। रिजवाना इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कराई थी। वाह अम्मी, अब आपने कोई तो दादी जान और फुप्पो के खिलाफ काम किया। तहा खुश होने लगा था। फजूल मत हाँका करो, इनमें से किसी के सामने बोलना भी नहीं। रिजवाना रिश्ते की बात तो कराई थी, मगर उन्हें राजदार अपनी सास से सामना करना था। झिझक आ रही थी, वो दोनों ही उन्हें खूब सुनाएंगी। बिग ब्रदर, आप इस सिलसिले में कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आदम को ज़मरान के खामोश रहने पर हैरानगी थी। ये अम्मी का काम है, मैं क्या बोलूँ? वो चेहरे को सपाट रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, हालांकि दिल में तो उसके लड्डू फूट रहे थे। उसने भी तो हवाब के मुतालिक सोचना शुरू किया था। उसे क्या खबर थी किस्मत ऐसी मेहरबान होगी कि वो बिन मांगे उसे मिल जाएगी। बस बस, ज़्यादा संजीदा होने की एक्टिंग नहीं करें। मुजम्मिल उसे शौकी से देखते खोया हुआ। जमरान ने तीनों भाइयों को देखा, जिससे मुस्कुराती और मानी खेज नजरों से देख रहे थे। अम्मी, जवाब कब तक देंगे वो लोग? आदम ने एकदम ही मुदव्वराना लहजे में पूछा था। उन्होंने कहा है जमरान के बाप तो है नहीं।
اس کے چھوٹے भाई को दादा अब्बा बनाकर जवाब देने आ जाएं। इमरान ने भी उसी के लहजे में कहा था। सबकी हंसी छूट गई थी। बेफिक्र रहें, जवाब लेने मैं ही जाऊंगा। आदम ने अपनी झेप मिटाई थी। आदम मेरा बच्चा, तू भी नवीन के लिए हामी भर ले। कम से कम कुछ तो तुम्हारी दादी फूफी का मुंह बंद हो। अम्मी, आपने ये क्या बात की है? इमरान को इनकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। आप डरती हैं उन लोगों से? बात डरने की नहीं है, रिजवाना ने आदम की बात पर कहा। फिर वो सवालिया अंदाज में उन्हें देखने लगा। पहले खानदान वालों का ही हक बनता है। वो बोले कि जब घर में लड़कियां मौजूद हैं, बाहर देखने की क्या ज़रूरत है? अम्मी, आप अभी तक पुराने दौर की बातें करती हैं। ये कहीं कोई लिखा हुआ तो नहीं ना कि खानदान की लड़कियों से ही शादी की जाए? आदम जरा करने में माहिर था और वैसे भी दकियानूसी फैसले और बातें सख्त नागवार गुजरती थीं। अम्मी, रिश्ता देने से पहले ये सब सोचती आप। अब सोचना बेकार है। मुजम्मिल को उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी। मैंने रिश्ता सोच समझ कर ही दिया है। मैं चाहती हूँ एक लड़की राश्ताबाजी की आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं। फैशन और मेकअप की दुकान है, सारी कमाई मेरी उसी में बर्बाद होगी। यार आदम, क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो? कोई नहीं कर रहा तुम्हारी शादी नवीन से। जमरान ने ही उसका गुस्सा ठंडा किया था। फुफ्फो और दादी जान को जवाब मैं खुद दूंगा। नहीं जमरान, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, फिर वो मुझे कहेंगी कि बेटों को तमीज़ नहीं सिखाई। रिजवाना शुरू से ही डरती आ रही थी। अम्मी, हम अपना खाते हैं, उनसे लेकर नहीं खाते, जो अभी भी हम डरते रहें। जमरान भी चरागपा होने लगा था। यार क्या बात है, इतनी खुशी की बात होने जा रही है और आप सब फजूल बातों में उलझ रहे हैं। ताहा को बेजारियत होने लगी। ख्वामखा अम्मी ने ही मनहूस बातें निकाली हैं। आदम को अपनी दादी फूफी का जिक्र तक जहर लगता था। होश में रहकर बात करो, रिजवाना ने उसे टोका था। कम ऑन, आप इतना क्यों इन लोगों से डरती हैं? आपके बेटे हैं, आपकी मर्जी उनसे उनकी किसी से भी शादी कर दें। आदम, मेरी मर्जी यही है कि नवीन के लिए तुम हामी भर लो। रिजवाना उसी बात पर अटकी हुई थी। ये कभी भी मैं नहीं मानूंगा, वो सब मुझे जहर लगते हैं। रमजान ने रिजवाना को इशारे से चुप करवा दिया था। आदम पैर पटकता अंदर चला गया। आप क्यों उस बात को लेकर बैठ गई हैं? जानती हैं आदम को, वो किसी तो राजी नहीं होगा। बेटा, उसे राजी करो। जाने क्यों मुझे तुम्हारी दादी और फूफी से आज भी डर लगता है। वो बहुत परेशान और फिक्रमंद थी। बिल्कुल भी नहीं, आदम की मर्जी के बगैर बिल्कुल नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं, जमरान ने तसल्ली दी थी। मुजम्मिल और ताहा ने तासुब से उन्हें देखा। आदम का गुस्सा 2-3 दिन तक तो उतरने वाला नहीं था। रिजवाना को उसकी भी फिक्र हो रही थी। उनका ये बेटा सबसे अलग तबीयत का था, किसी रिश्तेदार से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। नसरीन को घर में कुछ खबर नहीं थी क्या चल रहा है। जवान जहान लड़कों के साथ लड़कियां भी थीं और फराज, उसे तो फ्लर्ट करने से भी फुर्सत नहीं थी। सादियों से जानती भी थी, मगर फिर भी उसकी बातों में आ जाती थी। हुस्ना तो अपने शौक में मसरूफ रहती थी। अरे फराज, तू क्या लड़कियों में घुसकर बैठ जाता है? कोई काम वगैरह नहीं है? नसरीन ने उसे घूरा था, जो अपने बालों को चमका के गुनगुनाते हुए सादिया को मानी खेज निगाहों से देख रहा था। अरे अम्मी, जॉब 8 बजे तक की होती है, इसके बाद मुझे कोई काम होता भी नहीं। वो चिढ़ गया था। सादिया यार, 2 ऑमलेट तो बना दो। वो बड़ी फ्री अंदाज में से मुखातिब हुआ। ऑमलेट तो खुद भी बना सकते हो, बना लो। नसरीन को फराज की लगावट नजर आ रही थी। वो ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहती थी। तुम अपने काम से काम रखा करो। उन्होंने सादिया को भी झाड़ दिया। वो जज्बस हो गई थी। उनसे वो बहस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, क्योंकि नसरीन तबीयत भी साफ कर देती थी। पप्पो, मैं तो कुछ भी नहीं बोली हूँ, वो मिनमिनाई थी। यहाँ घूमने फिरने आई हो, यही करो। उल्टे सीधे चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। अम्मी, आप तो बात का बतंगड़ बना देती हैं। फराज चिढ़कर गोया हुआ। हुस्ना चौखट पर खड़ी सब सुन रही थी। वो तो खुद कई रोज से फराज की हरकतें देख रही थी। तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? नसरीन की निगाह यकदम ही उस पर पड़ी। हुस्ना गड़बड़ा गई। वो मैं अभी आई हूँ। तुम्हें भी खूब समझती हूँ मैं। उनका नज़ला हुस्ना पर गिरने लगा। फराज को ऑमलेट बना कर दो, और हाँ, इसे पकाकर तुम ही दिया करो। उन्होंने सादिया पर कड़ी तनकीदी निगाह डालते हुस्ना से हुक्मिया लहजे में कहा। मुझे कभी तो छोड़ दिया करें। वो झुंझुलाई, खिसियाई हुई गोया हुई। दिमाग खराब कर दिया है रिफत ने। तुम्हारी आंखों पर तो ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। बात मेरी होती है और अब मम्मा को घसीट लेती हैं। माँ तेरी मैं हूँ, वो नहीं जिसके इशारों पर जलती है। ज्यादा ही उसे पैसे का घमंड है। नसरीन कोई बार खाली नहीं जाने देती थी। फराज को ऑमलेट बनाकर दो, इसके लक्षण भी मैं देख रही हूँ। अम्मी खुदा को मानिए, मैंने सिर्फ सादिया से ऑमलेट बनाने का ऐसा ही कह दिया था। आप तो फसाने घर लेती हैं। फराज तो बनना ही गया। ज़्यादा मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है। आंखें खुलती रहती हैं, आंखें खुली रखती हूँ मैं। वो तो आंखें निकाले उस पर चढ़ दौड़ी थी। हुस्ना हड़बड़ा कर रह गई थी। मरती क्या ना करती कि मुस्ताक फ्रिज से अंडे निकाल कर ले आई। तुम्हारा भी
इसी साल बंदोबस्त करती हूँ। क्या बंदोबस्त करेंगी? वो दांत पीसने लगी। शहरियार आएगा तो मैं भाभी से बात करती हूँ। खुदकुशी कर लूँगी, उस आदमी से कभी शादी नहीं करूँगी। वो अंडे सिंक में फेंक कर चीखने लगी थी। यार, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है। हर वक्त उस लड़की के अल्फाज कान में गूंजने लगते हैं। सुकून के लिए तरसोगे? हैशम बेकल और बेचैन था। वापस चले जाओ, मना लो उसे। अशर उसे अक्सर समझाता रहता था। मैं वापस तो कभी नहीं जाऊंगा, और उस लड़की को तो कभी भी नहीं अपनाऊंगा। नाना जान ने मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर दिया? उसे तो इन पर ही यही बात सोच सोचकर गुस्सा आता रहता था। तुम भी तो ये सोचो ना कि नाना जान ने तुम्हें शुरू से पाला है, इतना तो हक रखते हैं तो ये क्या किसी भी चलती फिरती लड़की से मेरा निकाह पढ़वा देंगे? वो दुख और तासुब से गोया हुआ था। तुम हर बात को गलत एंगल से क्यों लेते हो? वो दोनों लंच आज बाहर करने गए थे। दोनों बातें करते हुए ऑफिस में आए थे। खुशनुमा उसे इतने अरसे बाद देखकर चौंक गई थी। लंबा चौड़ा हैशम ग्रे पैंट पर पिंक कलर की शर्ट में हैंडसम लग रहा था। खुशनुमा ने कनखियों से उसे अंदर रूम की तरफ जाते हुए देखा। तुम अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। ऑफिस? हाँ, सोच तो रहा हूँ। उसने पुरसोच अंदाज में सर उठाया था। मुझे फिर वापस घर जाना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़रूरी है। अशर ने शुक्रिया अदा किया था। उसने कुछ तो सोचा। एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आपसे बात करनी है। खुशनुमा दस्तक देकर आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। दोनों ने ही चौंक कर फहमाइशी निगाहों से उसकी बौखलाहट देखी थी। जी मिस, कहिए। सर, मैं मिस नहीं मिसेज हूँ। झट से उसे याद दिलाया था। ओके ओके, जी बोलिए। अशर उसकी बेवक की आमद से कुछ बेजारियत महसूस कर रहा था। हैशम ने इस तूफान को दिलचस्प निगाहों से देखा। मलकोती हुसन लिए वो कास्नी कपड़ों में बहुत दिलकश लग रही थी। सर, छुट्टी में आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? मुझे ज़रा जल्दी पहुंचना है, बस देर हो जाती है। वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। खैरियत? सवालिया निगाह उठाई और हैरानगी भी जाहिर की। जो कितने फ्रैंक अंदाज में उससे मुखातिब जो हो गई थी। सर, मेरी बहन के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। उसने निगाह सामने जमाई हुई थी, क्योंकि हैशम जो उसी की तरफ मुतवज्जा था। ये लड़की तो बिल्कुल तूफान मेल है। कैसे अपनी मनवाती है? वो बगौर उसे देखने लगा था। आप रिक्शा टैक्सी पर भी जा सकती हैं। सर, आपको नहीं पता ये रिक्शा टैक्सी वाले कितने कमीने और बदमाश होते हैं। लड़कियों पर निगाह रखते हैं। इस वक्त उसने सुनाने को हैशम को ही कहा था, जो उसे ही देख रहा था। झट खफीफ सा होकर निगाह दूसरी तरफ कर ली थी। खुशनुमा मुस्कुराहट रोक लिए लब कुचलने लगी थी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? अशर को ये सादा सी लड़की जाने क्यों मुतवज्जा करती हुई लगी थी। क्या बता, मैं भी बदमाश हूँ? नहीं सर, आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो कमीने लोग अलग ही होते हैं जो बीवी रखते हुए भी दूसरी लड़कियों को तकते हैं। उसने फिर जताया था। हैशम को अचानक ही अच्छू लग गया था। टेबल पर रखी मिनरल वाटर की बोतल होठों से लगा ली थी। इस लड़की को लगता है ना सिर्फ आंखें बल्कि दिल के अंदर का हाल भी पता होता है। उसका जहन बहुत कुछ सोच रहा था। अच्छा ठीक है, 4 बजे मैं निकलूंगा, अब रेडी रहिएगा। अशर ने उसे जल्द ही फारिग किया था, क्योंकि वो दिमाग की चटनी करने में माहिर थी। सर, बुरा नहीं मानिएगा, मुझे आपके इन दोस्त की निगाह ठीक नहीं लगती। शर्म नहीं आती दूसरों की बीवी को यूं घूर घूर कर देखते? लहजा बड़ा मायनी खेज और तंजिया था। वो तो अच्छा खासा गड़बड़ा ही गया था। खुशनुमा जा चुकी थी। यार, ये क्या चीज़ है? वो तो हवास बाख्ता ही हो रहा था। ये जुमले ऐसे बोल रही थी जैसे इसे पता हो तुम्हारी शादी हो गई हो। अशर के लब मुस्कुरा रहे थे। बकवास नहीं करो, वो झेम क्या था। वैसे यार, लड़की प्यारी है, मगर इसका शौहर बहुत बदनसीब है, जो इतनी सादा लड़की को छोड़कर चला गया। मुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है। ऐशम खुद को अजीब सा फील कर रहा था। जाहिर है, इंसानियत के नाते तो होनी भी चाहिए। वो सर हिलाकर रह गया था। ऐशम को ये लड़की हर दफ़ा चौंका ही रही थी। वो ना चाहते हुए भी उसे सोचने लगा। रिजवाना आदम के साथ हसीन बेगम के घर चली आई थी। 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो सोचा इनका अंदिया ही ले आएं। इस रिश्ते पर उनका क्या इरादा है? अरे रिजवाना, आप तो इतनी जल्दी कर रही हैं। हसीन बेगम को झिझक रही थी इतनी जल्दी जवाब देते हुए। कनाडा से शहरियार से भी बात करके पूछ लिया। उसका जवाब भी यही था कि देर नहीं करना, फौरन ये रिश्ता कबूल कर लें। देखिए, हर लड़के की माँ को जल्दी होती है, वो बेटे के सर पर सेहरा देख ले। रिजवाना मुस्कुराकर बड़े तरीके से गोया हुई। अरे बीना, आप भी तो कुछ बोलें। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ थोड़ा और टाइम दे दें। अरे बीना, ये क्या बात कर रही हैं? शहरियार ने कह दिया है, जवाब हाँ में ही देना। हसीन बेगम बीना को फिसलते देखकर झट गोया हुई। उन्हें डर था कि रिश्ता भी हबाब का हाथ से ना निकल जाए। अम्मा, इतनी जल्दी भी क्या है? वो खफगी दिखाने लगी थी। हमारी तरफ से हाँ है। आप कब आ रही हैं बात पक्की करने? इकराम ने ही उन्हें मुकम्मल जवाब दिया था। वो अपनी बहन को खूब जानते थे कि उनके क्या इरादे हैं। इकराम भाई, इतनी जल्दी भी क्या है?
बीना को बुरा लगा तो झट गोया हुई। जब जवाब हाँ में ही देना है तो देर लगाने की क्या ज़रूरत है। वो अपनी बहन को तो खूब समझते थे, उनकी हरकतें क्या हैं। रिजवाना तो सारे इंतजाम करके आई थी, झट सबका मुंह मीठा करवा दिया। अब आपको 1000 रुपये दिए। वो बिल्कुल डमी की तरह हर जज्बात से आ रही सबको हवास बाख्ता अंदाज में देख रही थी। उसके साथ ऐसा सलूक होगा, गुनाह ना होते हुए भी उसे ऐसे निकाला जा रहा था। इसका आखिर कसूर ही क्या था? इस पर क्या ऐब लगा था? मोहल्ले के किसी शख्स ने देख लिया तो क्या हुआ? वो गलत तो नहीं कर रही थी। अपनी जान बचाने के लिए अचानक ही वो बेसिन दौड़ी थी। उसे क्या खबर थी सामने आने वाला शख्स जमरान होगा। उसकी आंखों से खामोश मोती फिसल रहे थे। आखिर उसके साथ भी वही होने जा रहा था। सब यही कहेंगे, जैसी माँ वैसी बेटी। उसने भी अफेयर चलाए होंगे, इसीलिए तो मोहल्ले के लड़के से ही शादी हो गई। काश शरियार मामू आप यहाँ होते, आप तो मेरी बात समझते। ये लोग कभी मुझे नहीं समझ सकते। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। आखिर सब दुनिया वालों से ही क्यों डरते हैं? एक लड़की का कसूर ना होते हुए भी उसे किसी शख्स के साथ रुखसत कर देंगे, क्योंकि लोग बातें बनाएंगे और कोई रिश्ता भी नहीं करेगा। उसे कुछ खबर नहीं थी कि बाहर क्या मुज़ाकरात तय हुए थे, शादी कब रखी गई थी। नाजिया ने उसके सर पर हाथ फेरा। हबाब, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्यों रो भी नहीं सकती? लहजे में तंजिया भीगी हुई आवाज़ में वो लब खींच कर रह गई थी। ज़मरान, उनकी अम्मी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। वो उसे समझाने लगी थी। उसे तो इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो यही गम था कि उसका कसूर क्या था जो ऐसा फैसला किया गया। वो कब से ऊँधी लेटी हुई अपनी बनाई पेंटिंग को तंकीदी निगाहों से देख रही थी। कहाँ कहाँ उसमें कमी थी। हुस्ना मेरी जान, कब तक का काम करना है? रिफत के लबो लहजे में हर वक्त उसके लिए शहर टपकता रहता था। मम्मी, थोड़ी देर और। वो जब भी मूड में होती रिफत को कभी मम्मी कभी मम्मा कहती थी और अपनी सगी माँ को अम्मी ही कहती थी। बेटा कुछ देर सो जाओ, सुबह की उठी हुई हो। मम्मा आप जानती हैं कि जब तक पेंटिंग पर कुछ देर काम ना कर लूँ उस वक्त तक सोती नहीं हूँ। वो खफगी से तेज लहजे में गोया हुई। मेरी जान, तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी। एक मेरी माँ है और एक आप हैं, और एक मेरी मेरी सगी माँ है जिन्हें मेरा ज़रा भी एहसास नहीं। सिल पर चटनी पिसवाती हैं, कभी ये नहीं कहती कि हाथों पर मिर्चें लग जाएंगी। ग्राइंडर में पीस लो, मगर इन्हें तो चटखारे चाहिए। सिल पर पीसी लहसुन की चटनी का अलग मज़ा होता है। वो मुंह बनाकर बोली थी। तुम नीचे जाती ही क्यों हो? तुम जानती हो ना भाभी जान, जान पूछकर मुझे जलाने के लिए तुम ऐसे काम कहती हैं। ससुराल तुम जाओगी इसके साथ ऐसे काम करने के लिए? नसरीन जाने कब ऊपर चली आई थी। वो दोनों ही बौखला गई थी। रिफत की तो वैसे भी उन्हें देखकर हवा सिरकती थी। हुस्ना भी उनसे बहुत डरती थी, हालांकि उनसे जुबान दराजी तक कर लेती थी। एक दिन तो नसरीन ने हद कर दी, उसके 2 थप्पड़ तक लगा दिए थे। हुस्ना को रिफत ने लाड प्यार में बिगाड़ कर बदतमीज और खुदसर कर दिया था। खुद को बहुत अप्सरा समझती थी। शहरियार का 2 दफ़ा रिश्ता रिफत के कहने पर ही हुस्ना ने बाबेला मचाकर ख़त्म कर दिया था। भाभी आप भी तो ऐसे ऐसे काम बच्ची से करवाती हैं। वो मनमनाई थी। ऐसे ऐसे काम ससुरालों में करने पड़ते हैं, और ये बच्ची नहीं रही, 22 साल की हो गई है। तुम्हें तो उसकी शादी की ज़रा फिक्र नहीं। उन्होंने रिफत को आड़े हाथों दिया था। इतनी भी क्या जल्दी है? और फिर हुस्ना की शादी में और फिर हुस्ना की शादी मैं किसी अमीर घराने में ही करूंगी, जहां उसे कोई कामकाज ना करना पड़े। क्या तुम करोगी? बस रहने दो। कर दी तुमने। अरे तुम तो खुद नहीं चाहती कि इसकी शादी हो। शहरियार का रिश्ता तुमने ही तो खत्म करवाया था। अम्मी शहरियार दूध दूध वाले का रिश्ता अम्मी शहरियार दूध वाले का रिश्ता मम्मा ने नहीं, मैंने ख़त्म करवाया था। है ही क्या उसमें? अम्मा को देखो, अभी तक हीरोइन ही बनी रहती हैं। और बेटी का भी यही हाल है। हुस्ना की भी ज़ुबान नॉन स्टॉप चलने लगी थी। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। नसरीन ने उसे कड़े तेवरों के साथ घूरा। रिफत तो कलस्ती रही। हुस्ना को वो इतनी जो सुनाने लगी थी। सारी फजूल बकवास बंद करो और सीधी सीधी घरदारी पर तवज्जो दो। मैं जल्दी तुम्हारा करूंगी। वो अपना फैसला सुना चुकी थी। भाभी आप मेरी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। रिफत तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हुस्ना जवान हो गई है, इसकी शादी की फिक्र करो। मैं और तुम तो मर खप जाएंगे। इसकी फिक्र करने बाहर वाले आएंगे। इसके भाइयों के लक्षण भी कुछ अच्छे नहीं हैं, अपनी करके बैठ जाएंगे, उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देंगे। उन्हें रिफत की दिमागी हालत पर कभी कभी बहुत शक होता था, क्योंकि वहमी भी बहुत थी। मेरे पास इतना है, हुस्ना को बाद में परेशानी नहीं होगी। हुस्ना ने हैरानगी से रिफत को देखा। ये क्या बोल रही थी? यानी ये भी नहीं चाहती थी उसकी शादी हो? खैर इसको भी क्या, अगर सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है तो शादी की ज़रूरत भी क्या है।
ایک اس کی باہر جانے کی خواہش ہے، کسی طرح وہ چلی جائے، اور رفت اسے باہر تو کبھی اکیلی بھیجے گی نہیں۔ اس کی یہ خواہش اندر ہی دبی ہوئی تھی۔ بس بس اپنی دولت اپنے پاس رکھو حسنا، تمہاری ہی نہیں میری بھی اولاد ہے، مجھے اس کی فکر ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر روک کر گویا ہوئی تھی۔ جو بھی کام کر رہی ہو ختم کر کے نیچے آ جاؤ، ڈرائنگ روم کی صفائی کرواؤ، سعدیہ کو بھی میں نے کہا، وہ ساتھ لگ جائے گی۔ نسرین نے آواز کو نرم بنا لیا تھا۔ امی مجھے یہ پینٹنگ پوری کر کے آج لے جانی ہے، وہ کسیا کر رہ گئی تھی۔ اپنے شوق کے ساتھ گھرداری پر بھی توجہ دو، یہ سسرال میں کام نہیں آئے گا۔ کام ہی کام آئے گا، اور دماغ سے امیر محلوں کے خواب چھوڑ دو۔ وہ اسے اچھی طرح سنا کر واضح کرنے لگی تھی۔ مجھے پکارنا نہیں پڑے، آدھے گھنٹے میں آ جانا، وہ حکم صادر کر کے جانے لگی تھی۔ اور ہاں رفت، میرے معاملے میں ٹانگ کبھی مت اڑانا، ورنہ حسنا کو میں نیچے ہی رکھ لوں گی۔ وہ یہ دھمکی دے کر تیزی سے نکل گئی تھی۔ رفت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، کیونکہ ان سے کچھ بھی بعید نہیں تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔